Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Teenu Dubey and today we are going to continue our previous topic, that is Leibniz theorem. So today we start solving some questions based on Leibniz theorem. So here it is one question. If y to the power of 1 upon m plus y to the power of minus 1 upon m is equals to 2x, then we have to prove that x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 xy n plus 1 plus in bracket n square minus m square y n is equals to 0. So this is the question. We have to prove this question with the help of Leibniz theorem. So let's start solving this question. Now this given equation can be written as okay. Now what we are doing, we are multiplying y to the power of 1 upon m to the whole equation. This will give us plus 1 is equals to 0. Now observe, this is a quadratic equation in y to the power of 1 upon m. So as we all know, the formula for roots of quadratic equation, that is x is equals to minus b plus minus root over of b square minus 4ac upon 2a. So we are applying this formula here. What we get? Or this can be written as okay. This is the value of y to the power of 1 upon m. Again, the value of y will become x plus minus root over of x square minus 1 whole to the power of m. Okay, so give this equation number 1. Now we have to differentiate this equation with respect to x. We get, so let us see what we will get. So y1 is equals to m x plus minus root over of x square minus 1 whole to the power of m minus 1. Again we have to differentiate this value. This will become 1 plus minus 1 upon 2 root over of x square minus 1 whole to the power of 1 by 2 minus 1 into 2x. Okay, differentiation of this will become, this can be written as x square minus 1 whole to the power of 1 by 2, or again when we will differentiate it, we will get 1 upon 2 x square minus 1 whole to the power of 1 upon 2 minus 1 into differentiation of x square is 2x. Okay. ऐसा हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा 1 by 2 minus 1, that is minus 1 by 2, यानी कि वो आ जाएगा 1 upon अंडर रूट में. यहां से अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स whole divided by root over of x square minus 1. Now in my next step, I will shift this denominator to the left hand side. That is y1 into x square minus 1.
root over of x square minus 1 whole to the power of m minus 1. Now observe this part and this part is similar, so we had already shifted this one to the left hand RHS left hand side, sorry. So this will become m to the power of minus 1 plus 1, which is equals to m x plus minus root over of x square minus 1 whole to the power of m. Clear? Now go to the our question. Okay, observe that this is the value of y. जहां से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था इसकी वैल्यू क्या थी, y थी, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू वाई. ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है y1 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, RHS में क्या है my. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग we get y1 square x square minus 1 which is equals to m square y square. क्लियर? यहां तक क्लियर है. अब इसके आगे हमको क्या करना होगा, अगेन इस पार्ट को अब हमको डिफरेंशिएशन करना है. ओके, सो देखते हैं अब इसके बाद कैसा होगा. ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू. दिस विल बिकम 2y1 y2, differentiation of y1 square is 2y1, again differentiation of y1 that is y2, and this function will remain as it is, that is x square minus 1. क्लियर है? अब उसके बाद क्या हो जाएगा, RHS में इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज y1 square as it is, and differentiation of first function that is 2x. Okay, now in RHS m square will remain as it is a constant, and we have to differentiate y square, that is 2y y1. Okay, 2y1 y2 x square minus 1 plus 2x y1 square minus 2m square y1 is equals to 0. Now what we are doing, we are dividing the above equation with 2y1. Okay, so this will become y2 x square minus 1 plus x y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, यानी कि हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो यहाँ तक निकाल लिए. अब हमको क्या करना है, इस पर हमको लिबनिज थ्योरम अप्लाई करना है. ओके, तो देखो कैसे हो जाएगा. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म n times by लिबनिज थ्योरम. क्या करना होता है हमको, लिबनिज थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, हम हर एक टर्म में लिबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि हर एक टर्म को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 है तो y n प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज प्लस nc1. ओके, एंड yn प्लस 2 का क्या हो जाएगा, n प्लस 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बिकम 2x, अगेन nc2, yn प्लस 1 का अब क्या हो जाएगा yn, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x दैट इज 2. ओके, तो यहां तक ये क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ बाय लिबनिज थ्योरम. अब हम वैसे ही लिबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे सेकंड टर्म में, दैट इज x y1. तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y1 है तो yn प्लस 1 और x विल रिमेन एज इट इज. अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, nc1 yn और x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1. ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड टर्म का. यहाँ पे ध्यान रखिए, जब हम लिबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमको टर्म्स को कब तक एक्सपांड करना है, जब तक हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाती. जैसे ही हमको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है हम उस टर्म का वहां पे डिफरेंशिएशन स्टॉप कर देते हैं. क्यों,
क्योंकि अगर इसका अगला टर्म हम निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसके बाद की सारी टर्म्स क्या हो जाती है, 0। ओके, अब ये वाला टर्म बचा माइनस एम स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ y का n टाइम्स क्या हो जाएगा, y n इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है और कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना है, तो देख लेते हैं। टू एन सी वन एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू एन सी टू वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन वाई एन। ओके, और क्या बच गया, माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो कॉमन टर्म्स है उसको कॉमन ले लेती हूँ। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस वन, एक्स वाई एन प्लस वन, तो ये मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या बचेगा, टू एन सी वन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, उसी तरीके से वाई एन वाला टर्म देख लेते हैं। तो वाई एन वाले कौन कौन से टर्म है, एक तो ये है और एक ये है और एक हमारा थर्ड टर्म ये है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई एन वाला टर्म कॉमन लूंगी तो टू एन सी टू, ओके, प्लस एन सी वन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसमें कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन सी वन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा, प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू इंटू एन से टू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस अगेन एन सी वन एन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हमको क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए मैं n को तब तक एक्सपांड करूंगी जब तक मेरे को डिनोमिनेटर से वो कैंसल ना हो जाए, तो n को n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकती हूँ अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। उसी तरीके से इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, टू तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। अगेन मैं n को तब तक एक्सपांड करूंगी जब तक वो डिनोमिनेटर से कैंसिल ना हो जाए, तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस ये वाला टर्म भी सेम n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई टू दी एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में देखो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से ये एन वाली वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ऑफ वाई एन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, क्या किया हमने, हमारा गिवन फंक्शन था उसको पहले 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला और उसके बाद एट लास्ट उसमें हमने क्या किया, लीबनिज थ्योरम अप्लाई किया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन लीबनिज थ्योरम पे बेस्ड। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका जो थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके,
So let us see one more example. यहाँ पे given function है y is equals to a cos log x plus b sin log x, and we have to prove this two parts. First one is x square y2 plus xy1 plus y is equals to 0, and second one is x square yn plus 2 plus 2n plus 1 xyn plus 1 plus n square plus 1 yn is equals to 0. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने y2 को क्यों सर्कल किया है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे भी जो हमारे गिवन फंक्शन है उसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, कैसे पता चलेगा, जो हमको प्रूविंग पार्ट है उसमें हमको देखना है कि हमारे कितने डेरिवेटिव्स वहां पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे y2 है, दैट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट एटलीस्ट 2 टाइम्स. ओके, सो दिस इज द गिवन क्वेश्चन. गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, ऑन डिफरेंशिएटिंग equation first we get y1 is equals to minus cos log x से क्या हो जाएगा, a will remain as it is minus sin log x, again log x का 1 upon x plus b will remain as it is and sin log x का cos log x into 1 upon x. Okay, this can be written as x को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स. ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन वी गेट. अब यहाँ पे दो फंक्शन है, जो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज y2 प्लस y1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज 1, एंड हियर माइनस a विल रिमेन एज इट इज साइन log x का cos log x डॉट 1 अपॉन x, b cos log x का माइनस b साइन log x डॉट 1 अपॉन x. अब फिर से मैं क्या करूंगी, इस x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी और साथ में यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं. तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a cos log x प्लस b साइन log x. ओके, तो अब इसको कंपेयर कीजिए आप हमारी इक्वेशन नंबर 1 से. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ y. ओके, तो अब देख लेते हैं आगे. थोड़ा सा इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0. तो देखिए यही तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमको फर्स्ट पार्ट में इतना ही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होता है. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे लिबनिज थ्योरम, जिससे कि हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूफ हो जाएगा. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म n टाइम्स बाय लिबनिज थ्योरम, क्या हो जाएगा, y n प्लस 2 एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस n c1 y n प्लस 2 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x प्लस n c2, n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, y n और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x यानी कि 2. ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म का एक्सपांसन कंप्लीट होता है. अब हम करेंगे सेकेंड टर्म का, y n प्लस 1 डॉट x प्लस क्या हो जाएगा, n c1 y n डॉट 1. यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकेंड टर्म का एक्सपांसन, एंड लास्ट वन y का n टाइम्स क्या हो जाएगा, y n इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस विल बिकम y n प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 nc1 xy n प्लस 1 प्लस 2 nc2 yn प्लस x
yn plus 1 plus nc1 yn प्लस yn इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका एस पी से रहेगा yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस हम यहाँ से एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बचेगा 2nc1 प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1. ओके, उसी तरीके से वाई एन वाले टर्म्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2nc2 प्लस nc1 प्लस 1 yn is equals to 0. Okay, again on expanding this will become 2n factorial upon 1 factorial n minus 1 factorial plus 1 x y n plus 1 plus 2 into n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial. यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको एक्सपांड कर देती हूँ. इसका नेक्स्ट स्टेप n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल. उसी तरीके से यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल को कब तक एक्सपांड करूंगी n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल. ओके, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ऑफ yn. ओके, इज इक्वल्स टू 0. तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं. यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस वन विल कैंसल आउट एंड अगेन दिस वन विल कैंसल आउट एंड दिस वन विल कैंसल आउट. व्हाट विल गेट yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 2n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस n प्लस 1 ऑफ yn इज इक्वल टू 0. यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो ओवरऑल हमको क्या मिल गया yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0. यहाँ पे प्रूफ होता है हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. क्या किया हमने, पहले एक बार सॉल्व किया उसको 2 टाइम्स उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल के क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट तक फाइंड आउट करना था वहां तक सॉल्व किया. उसके बाद हमने क्या किया, उसमें लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई किया और एक एक टर्म को हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले अप्लाई किए, सॉल्व किया, हमको मिल गया यहाँ पे सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना था. तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से लिबनिट्ज थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे उस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. प्रूफ हम पहले ही समझ चुके हैं तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि हम लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस को कैसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं. अब देख लेते हैं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर रही हूँ जो कि है n डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ x. अभी तक हम लिबनिट्ज थ्योरम तो अप्लाई करते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ yn फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ x. कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में हमको yn की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, पर कैसे फाइंड आउट करनी रहती है, फॉर सम वैल्यू ऑफ x. ओके, मतलब हमको yn फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर, और मोस्टली ये x की वैल्यू हम लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0. सो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमको yn फाइंड करना रहता है एट x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए, यूजुअली द वैल्यू ऑफ yn एट x इज इक्वल टू 0 इज डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, yn ऑफ 0 से. तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके ऊपर, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके ओके, सो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. इसके लिए हमको ये लिबनिट्ज थ्योरम वाला जो कंडीशन है ये तो प्रूफ करना ही है, साथ में यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड yn ऑफ 0. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी कैलकुलेट दिस पार्ट एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट yn ऑफ 0. सो लेट्स स्टार्ट. द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. On differentiating, we will get y1 is equals to 1 upon 1 plus x square. Okay. On differentiating, give this equation number 2. This can be written. This can be or give.
Again, let us write this in form y1 into 1 plus x square is equals to 1. Now give this equation number 2. Okay. Now we will again differentiate this equation 2. Again, on differentiating, we get, what we get, y2 1 plus x square plus y1 into 2x is equals to 0. ओके, हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. दिस कैन बी रिटन एज 1 plus x square y2 plus 2x y1 is equals to 0. Now we differentiate this above equation with help of Leibniz theorem. On differentiating, give this equation number 3. Equation 3 n times by Leibniz theorem. What will get? 1 plus x square y n plus 2 plus nc1 y n plus 1 2x plus nc2 y n dot 2 plus this is the expansion of only first term. Now the expansion of second term will become 2 into y n plus 1 into x plus nc1 y n into 1. Okay, which is equals to 0. So this is the expansion by Leibniz theorem. On rearranging this and solving this, applying the formula of combination, what will get at last? Okay, here I am डायरेक्टली राइटिंग दी लास्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस इक्वेशन में ही इस कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला के अप्लाई करके कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे हमने देख लिया. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2 एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन एन प्लस 1 ऑफ वाई एन इज इक्वल टू 0. ये मिल गया हमको जब हमने इसको एक्सपांड किया, लिबनिज थ्योरम अप्लाई किया, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद हमको एट लास्ट ये मिल गया. यानी कि हमारे क्वेश्चन थे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है. ओके, अब हमको क्या करना है, वाई एन ऑफ 0 फाइंड आउट करनी है. यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सपोज इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, on putting x is equals to 0 on equation 4, what we will get. अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ x की 0 इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा मेरे को 1 प्लस 0, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा y m प्लस 2. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y m प्लस 2 ऑफ 0. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं. ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली 0 हो जाएगा. यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 ऑफ y n ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0. ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. और इसको कैसे लिख सकते हैं, y n प्लस 2 ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी माइनस n प्लस 1 ऑफ y n 0. ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5. अब फिर से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था क्या था, ये यहाँ से y ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 0 यानी कि 0. क्लियर है. उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 y 1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 2 से y 1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1. यानी कि क्या इंप्लाई करेगा, y 1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो रही है, 1. कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, उसी तरीके से अब हम इक्वेशन 3 देख लेते हैं. इक्वेशन 3 में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 y 2 ऑफ 0 प्लस ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके,
यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या किया, लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन जैसे अभी तक सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया। यहाँ से हमारा नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हमको क्या करना है, वाई एन ऑफ जीरो फाइंड आउट करनी है, यानी कि वाई एन की वैल्यू एट जीरो पर फाइंड आउट करनी है। तो वाई एन की हम अलग अलग वैल्यूज, एन के लिए एन वन रख के, 2 रख के, 3 रख के, ऐसे अलग अलग उसके लिए पहले हम सॉल्व करके देख लेते। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू 0 रख के देखा, तो हमको y n प्लस 2 ऑफ 0 की ये वाली वैल्यू मिली। अब वापस से इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों की हेल्प से हमने क्या क्या निकाल लिया, y ऑफ 0, y1 ऑफ 0 और y2 ऑफ 0। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमने देख लिया y0, y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0 की, यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब n इवन के लिए सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, कौन सी इक्वेशन से निकलेगी, इन इक्वेशन 5। ये हमारा जो इक्वेशन था इसमें हम n की अलग अलग वैल्यूज रख के n की yn ऑफ 0 की इवन के लिए हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं 2 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 2 प्लस 2 यानी कि y 4 ऑफ 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 y2 ऑफ 0। ओके, और y2 ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0। इसी तरीके से जब मैं सॉल्व करूंगी तो जैसे कि y4 ऑफ 0 आया है, उसी तरीके से y6 ऑफ 0 आ जाएगा, उसी तरीके से y8 ऑफ 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने इवन के लिए वैल्यूज निकाल ली। फॉर n इज इक्वल्स टू इवन y n ऑफ 0 इज इक्वल्स टू वैल्यू आ रही है 0। अब हम देख लेते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू ऑड वैल्यू। ओके, तो ऑड वैल्यू के लिए क्या करना है, वापस से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग n इज इक्वल्स टू, अब ऑड वैल्यू के लिए क्या क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 1, n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड अगर हम पुट करेंगे 3 और 5 तो क्या हो जाएगी वैल्यू, देखते हैं। सबसे पहले 1 के लिए तो y3 ऑफ 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1, 1 प्लस 1 y1 ऑफ 0। ओके, अब यहाँ से देखो y1 0 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, -1 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ठीक है। यहाँ से उसी तरीके से हम देख लेते हैं y5 ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो -3, 3 प्लस 1 y3 ऑफ 0 क्या हो जाएगा, -3.4, और y3 ऑफ 0 वैल्यू की क्या है, -1.2.1, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर अरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 और फिर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ओके, 4, 3, 2, 1 ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमको क्या मिली थी, -1 इंटू 2.1, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, y30 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -1 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ इस वैल्यू को। उसी तरीके से y5 यानी कि ये वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसी प्रोसीजर में अगर मैं 5 के लिए निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, y7 ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 क्यूब, 5 था 4 आया तो 7 था तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। तो इस सीक्वेंस में हमको और वैल्यूज के लिए भी वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन n is odd
yn of 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर ऑफ n माइनस, अब देखिए हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे आ रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और साथ में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब n इवन था तो हमको yn की वैल्यू मिल रही थी yn ऑफ 0 0, और जब n ऑड था तो yn ऑफ 0 की वैल्यू मिल रही है -1 टू द पावर ऑफ n-1 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं, जब यहाँ पे हमने n रखा था, क्या रखा था, n जब 1 रखा था, यानी कि y3 0, तो 1 रखा तो क्या हो गया, -1 टू द पावर ऑफ n-1 बाई 2, यानी कि y5 3 के लिए हम निकाले तो 3 - 1 यानी कि 2/2 डेट इज 1, और साथ में 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरीके से जब 5 रखेंगे n की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 5 - 1 डेट इज 4/2 यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर इंटू 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ये आपने समझ लिया कि अगर लिबनिज थ्योरम तो अप्लाई करके सॉल्व करना ही है, प्लस अगर बोल रहा है कि yn ऑफ 0 कैलकुलेट करो तो yn ऑफ 0 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमको 2 पार्ट करना पड़ता है, एक तो इसकी इवन वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है और दूसरा इसकी ऑड वैल्यूज के लिए, ओके। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आज मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो आगे भी मेरी वीडियोस पे बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।